Dear students, how are you? Today we are here with your worksheet number 2 of science of class 6th. It is being given to you on 16th of September. It is about components of food. Please first of all subscribe to my YouTube channel so that I could make more and more videos for you. और यहाँ पर हम दोनों वर्कशीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंग्लिश वर्कशीट और हिंदी वर्कशीट दोनों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इंग्लिश वर्कशीट के बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं यहाँ पर आपकी वर्कशीट के अंदर क्या लिखा हुआ है। Components of food. As we have studied earlier, to get energy we need energy giving food. For growth and repair of our body we need body building for food, and to stay healthy and fight diseases we need food which help or which protect us from diseases. एनर्जी के लिए हम एनर्जी गिविंग फूड, और अपनी बॉडी को वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड, और प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वैसा ही खाना खाना चाहिए। इट मीन्स नो सिंगल फूड कैन फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स। हमें कोई भी हमारी जो सिंगल फूड है वो कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता। तो कंपोनेंट ऑफ फूड यहाँ पर लिखे हुए हैं न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ये अपनी कॉपी में लिखेंगे। ऐसा वेरी सर व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। सो यहाँ पर बात आती है हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो पहले क्वेश्चन आता है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि और इसके काइंड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाई। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, दीज आर न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं आखिर न्यूट्रिएंट्स? द कंपोनेंट फूड दैट सर्व डिफरेंट पर्पसेस इन आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के जो डिफरेंट पर्पस सॉल्व करते हैं हमारी बॉडी के, उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। इनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी, फैट स्टोर आवर एनर्जी, proteins they help in body building of our body, and minerals they help in normal functioning of our body. Vitamins they protect us from the diseases. Along with nutrients our body also need fibrous food and water. Fibrous food include your fruits and vegetables. Okay, your fruits and vegetables. ठीक है बेटा, and now and water. Okay, it is also called as roughage, or you can also write it like dietary fibers. These are the other names of fibrous food, dietary fibers. Okay, now let's answer what are nutrients. Name the nutrient which is required for the growth of our body. सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ बता देते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। The components of food that serve different purposes of the body are called as nutrients. So this is your answer number 1. Moving to next question. Which component or which nutrient which is required for the growth of our body? Growth of our body is fulfilled by the body, that is proteins. Okay, so you will write here proteins. We will write it here only, proteins. That is our body building. Okay, now complete the sentences. Carbohydrate are energy giving nutrients. These are energy giving nutrients. Our body also needs dash and dash. So here we will write fibrous food. I just zoom in so that I could write the answer. I will write here fibrous food and here water. Okay, now every day you run for 5 kilometers. Which nutrient must be present in your diet? Although we need all the nutrients, but for running purposes you need proteins more. Okay,
proteins and vitamins, basically proteins, body building nutrient, that is your protein. Now coming to our Hindi worksheet, let's see it. इसमें भोजन के घटक के बारे में बताया गया है। यह वर्कशीट आपको 16 सितंबर को मिलेगी और ये वर्कशीट नंबर 2 है साइंस की। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऊर्जा देने वाले भोजन चाहिए होते हैं और वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले और स्वस्थ और रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए हमें वैसे ही भोजन चाहिए होते हैं। इसका मतलब है कि एक प्रकार का भोजन सभी प्रकार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए हमें पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो अब यहाँ प्रश्न पैदा होता है कि पोषक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो भोजन के घटक के अंदर हम यहाँ पढ़ेंगे पोषक तत्व, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि आखिर पोषक तत्व होते क्या हैं। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर भोजन के वो घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उनको पोषक तत्व कहते हैं। विभिन्न कार्य जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, इनको और 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा देते हैं, वसा जो शरीर में ऊर्जा को संचित करते हैं, जो ऊर्जा बनी है उनको इकट्ठा रखते हैं, प्रोटीन जो शरीर बनाने वाले पोषक तत्व हैं, खनिज जो शरीर के सामान्य कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है, और विटामिन जो रोगों से, यहाँ रक्षा लिखेंगे बेटा, रक्षा करने के लिए काम आते हैं। पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशे और पानी की भी जरूरत होती है। ठीक है बेटा, तो रेशे कहाँ से मिलते हैं हमें? ये मिलते हैं हमें फल और सब्जियों से। ठीक है बेटा, ये हमें कहाँ मिलते हैं? फल और सब्जियों से। ठीक है, इसके बाद है आपके प्रश्न उत्तर, जिसमें सबसे पहला है पोषक तत्व किसे कहते हैं या क्या क्या होते हैं। तो हमारा जो ये भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्यों करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो ये है आपका उत्तर नंबर 1। इसके बाद है उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर बेटा प्रोटीन जो है आपकी, जो शरीर की वृद्धि के लिए जरूरत है। ठीक है, शरीर बनाने वाला पोषक तत्व है प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं बेटा? ये कार्बो यही लिख रखा है इसके अंदर, ये गलती से उन्होंने ऊर्जा ही लिख दिया है यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं, तो यहाँ पर डैश ऊर्जा के लिए आना चाहिए था, तो हमें ऊर्जा भरना था, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा इन्होंने अपने आप लिख दिया है, तो आप अपने आप लिख लीजिएगा। इसके बाद है पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को किन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा पास करके लिख देती हूँ बेटा, रेशे और पानी की। ठीक है बेटा, यहाँ लिखेंगे रेशे, और जल भी लिख सकते हैं और पानी भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद है यदि आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाती है तो आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व जरूर होना चाहिए। हालांकि आपके खाने में हर तरह का पोषक तत्व होना चाहिए, लेकिन अगर आप दौड़ लगा रहे हैं तो शरीर बनाने वाले पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ठीक है बेटा। और बेटा मैं जो फर्स्ट वाली जो वर्कशीट थी आपकी जो इंग्लिश की थी, उसके अंदर भी यहाँ लिखना रह गया है प्रोटीन्स एंड यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स भी लिखिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 2 साइंस की, क्लास 6 की। नेक्स्ट वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।